तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दीजिए प्लीज आपको कैसे स्वागत करें। सभी का डीजीएफटी प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू सो मच। आज हमारे जो प्रोग्राम का मेन एजेंडा है वो है डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे बात करना। और क्या क्या पॉलिसीज है डीजीएफटी का एक्सपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंसेस को लेकर, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री कुमोद कुमार जी को वेलकम एड्रेस के लिए बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। मैं आज के इस कार्यक्रम को विजन करने के लिए दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देता हूं और सुजीत कुमार निराला जी को भी मैं कहता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और यहाँ जो हमारे बी हब में स्टार्टअप्स हैं उनके महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इन्होंने सहमति दी। मैं हमारे जितने भी स्टार्टअप हैं जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और यहाँ भी हैं, उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूँ चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राणा सिंह जी का, कि वो भी अपने अत्यंत बिजी शेड्यूल के बावजूद वो इस कार्यक्रम में आए। मैं इस बात को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा इन इस तरीके का कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि यहाँ के रिजर्व बैंक और यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी में वो आगे मदद करता रहेगा। और मैं एक बार पुनः जो है ताली बजाकर सुजीत बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अब डॉक्टर राणा सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप एड्रेस से। Good morning, everyone. It's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to extend a warm welcome to Sujit Kumar Nirala sir, who is FTDU as DDRT office based at Kolkata. I'm thankful to TSD Chamber of Commerce in general and Mr. Pranav Singh ji in particular, who was the President Director for Bihar and Jharkhand. And it's important for us to understand that foreign trade is playing a phenomenal role in the growth trajectory of the country. And it's important for us to understand how we, as CIMP, BIF, and BHUB and CIMP together can join hands with the DGFT office to understand what are the various schemes, programs of DGFT, and how we can leverage the existing programs and schemes. What are the programs which can enable the entrepreneurs and startups to strengthen their knowledge, skills, and competencies to further their strength in the process of ensuring exports and imports? It's important for us to understand that most of the processes at DGFT office have been digitized and they are online, right from getting the IEC code, importer exporter code. There are series of programs under the Niryat Bandhu scheme. Most of the programs have been recorded for the existing startups and other stakeholders of the international trade community, right from understanding about Incoterms, what are the Incoterms, what are the compliances to be made, what are the formats to be used, how to make application online, code. India Trade Portal is an impressive portal to showcase the trade statistics of the country. What are the imports and exports being done from India? How the startups are playing a phenomenal role? What are the various process compliances to be done? So it's important for us to understand the various challenges and opportunities in the domain of international trade and how we as startups
can understand the challenges, implications, complications, and ramifications to minimize the risks associated to import and export. Sometimes, a lot of us, we have a fear psychosis. It's a very cumbersome process. No, let me help you understand, all of you, that import and export has become a lot more simpler, easier, convenient, and conducive to the startups in general, and also to the other trade bodies, especially the international trade stakeholders. So it's important for us to understand the finer nitty-gritties of the process, procedures, and we are delighted to inform all of you that a government official traveling all the way from Calcutta to come to Bihar to help all of us understand what is DGFT office to offer to all of us as startup community stakeholders, and how we can ensure better compliance to the import and export processes, and how we can leverage the various schemes, policies, programs, and procedures so that we can become successful in the domain of international trade. We once again welcome you, sir. The background. Now I would request Mr. Sujit Kumar Nirala to kindly address. Can be bilingual in English to हमें हम तो हिंदी में बहुत बड़े सर काफी लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दे ऑल आर स्टार्टअप्स. अप्रॉक्स 50 प्लस स्टार्टअप्स आर कनेक्टेड विद अस ऑनलाइन आल्सो. धन्यवाद सभी को और इतना बढ़िया प्रोग्राम के लिए सर ने जैसे CMPI है और PHD से के सौजन्य से ही हम लोगों ने DGFT को भी इनवाइट किया और इसके लिए हम काफी धन्यवाद देते हैं सभी लोग. DGFT पहले तो DGFT का ऑफिस हमारा पटना में भी था, मगर 2019 से ये ऑफिस हमारा कलकत्ता ऑफिस के साथ मर्ज कर गए. तब से बिहार के लोग सारे चीज तो ऑनलाइन हो गए हैं और ऑनलाइन होने के बाद फिर भी हम लोग मैंने काफी कुछ बीच बीच में यहाँ निर्यात बंधु स्कीम के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस चलाते हैं. और अभी हम कुछ यहाँ जो कैसे हम लोग ये सबसे पहले तो मैंने इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता होती है जिसको IC कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. और बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के हम लोग फिर एक्सपोर्ट के बिजनेस में घुस नहीं सकते हैं. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेना एक्सपोर्टर के लिए सबसे जरूरी सबसे पहला काम है. आपको एक रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए और फर्म के नाम से बैंक में अकाउंट होनी चाहिए. ये है. उसके बाद फिर GST रजिस्ट्रेशन भी मस्ट है इसके IC के लिए. ये रहेगा और फिर इसमें आपको मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल ID होगा. इसके माध्यम से DGFT के साइट पे जाके dgft.gov.in पे जाएंगे और फिर अप्लाई IC करेंगे. अप्लाई IC जिसमें आपको फिर ईमेल ID और मोबाइल नंबर को वैलिडेट करके फिर वो प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे. सारा चीज वो सिस्टम खुद बताते चला जाएगा, खुद ब खुद सारा अपलोड करेंगे. अभी पहले 10 डिजिट का न्यूमरिक नंबर इश्यू होता था जो अब काफी पहले मैनुअल भी होता था, बाद में जाके फिर ये ऑनलाइन भी 10 डिजिट का न्यूमरिक होता है. अभी आज के दिनों में हमारा पैन ही IC हो जाता है. पैन को ही IC में वैलिडेट कर देता है DGFT. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इसके बाद ये जब हमारा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तब आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं. और इसके बाद ही कोई खास खास स्कीम्स जो हमारे जैसे है कि CGCG लाइसेंस भी हमारे यहाँ से इशू होता है, एडवांस ऑथराइजेशन भी इशू हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस इशू होगा. ये सारा लाइसेंस आपका DGFT के पोर्टल पे मिल जाएगा. सारे चीज ऑनलाइन, एक एक चीज ऑनलाइन में ही मोड में ही जाना. और आपका ये EPCG लाइसेंस के लिए फिर जब IC होल्डर है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की स्कीम है. आप माल को ड्यूटी फ्री ही लाएंगे, 0% ड्यूटी पे माल आएगा.
मगर उसमें फिर है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेप्ट अमाउंट के का 6 टाइम आपको 6 ईयर में एक्सपोर्ट करना है। 6 टाइम 6 ईयर। 6 ईयर, 2 साल आपका फिर इसमें वैलिडेशन भी मिलेगा। मैंने टोटल मान के चलिए कि 8 ईयर्स में आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देना है। ये इसका ईपीसीजी स्कीम के तहत काफी अच्छी स्कीम है एकदम। सारे लोग इसमें मैंने ईपीसीजी के माध्यम से भी जितना भी जो भी आपके जैसे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई भी मशीनरी ला रहा है, तो वो आपको लाइसेंस लेने का फिर 6 ईयर 6 मंथ्स के अंदर में भी आपको इंस्टॉलेशन भी मशीन को करवा लेना है जब मशीन आ जाता है। और इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट फिर जैसे ही जमा करेंगे तो फिर आपका 6 ईयर जब से वो हुआ वो चालू हो जाएगा। फिर स्कीम्स तो बहुत सारे हैं, मगर अब ये सारा आईसी के लेने के सबसे पहले आईसी लेंगे ही लेंगे। लेने के बाद भी और काफी कुछ हमारा, तो जैसे बिहार आपका बहुत बड़ा एरिया, मार्केट के लिए तो बहुत बड़ा एरिया हमारा नेपाल सटा हुआ है। 3-4 पोर्ट तो एकदम सीधा सीधी नेपाल से सटा हुआ है। जैसे जोगबनी का पोर्ट है, इधर भिट्ठा मोड़ है, यहाँ पे फिर ये ये रक्सौल का पोर्ट है। तो आप नेपाल को भी एक मार्केट के रूप में चुन सकते हैं बगल से। और फिर बांग्लादेश का भी पोर्ट हमारा सट जाता है, पानी टंकी और ये सब सब करीब करीब सटा हुआ है बिहार से। तो संभावनाएं तो काफी हैं यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए। नेपाल में मैं जब यहाँ ऑफिस हमारा था उस समय मैं बता रहा हूँ 2012 से 19 के बीच में नॉन बासमती राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, माने हर साल इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, इतना ज्यादा। और वो बिहार के लोग नहीं कर रहे, सारे लोग यूपी के लोग आ रहे हैं। चूंकि लाइसेंस जो देना था वो हमारा बिहार ऑफिस से देना। तो हम समझ रहे हैं कि यूपी में मिल कितने हैं, कम से कम तो 10,000 मिल हैं। अब बिहार में मिल बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत आपका सासाराम एरिया में है जो लोग वो लगाए भी हैं। तो बिहार गवर्नमेंट काफी कुछ उन लोगों को फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया, तब वो जाके यूपी के लोग ही लगाए हैं बड़ा बड़ा मिल। जैसे वो वहां पर बेबीलोन राइस मिल है बड़ा, फिर आपका सिद्धि विनायक है, सब यूपी के लोग हैं। तो उस एरिया को पकड़ करके भी चल रहे हैं। अवेयरनेस की आवश्यकता तो है निश्चित रूप से। जब हमारे यहाँ का राइस और वो यूपी के लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। खूब खूब लाइसेंस खूब चाप, मैंने मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पटना ऑफिस से महीने में कम से कम तो 40 से 50 हजार मेट्रिक टन का राइस का प्रोडक्शन यहाँ से जारी हो। इतना ज्यादा राइस भी गेहूं भी। अभी तो इस पे थोड़ा अभी रोक लगी है इस कारण से अभी रोक लग गई है थोड़ा गवर्नमेंट का पॉलिसी के अनुसार से। अभी नॉन बासमती राइस पे अभी जो फ्री जा रहा था ना, फिर ये रजिस्ट्रेशन लीजिए और राइस भेजिए। तो बहुत कुछ उस समय में तो बिहार के लोग तो रहते ही नहीं थे, सब यूपी वाले ही भेजे। कुछ पंजाब के लोग भी भेजे, यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा के लोग भी आते थे। क्योंकि सारे ऑफिस का सारे बिहार इंडिया के सारे स्टेट का इशूइंग के लिए नेपाल के चलते पटना ऑफिस को दिया। तो सर थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, यहाँ बस राइस का कैसा है? थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। अभी मलेशिया मलेशिया का तो है। बहुत सारे एक्सपोर्टर लोग मलेशिया के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन लेनी है उसमें, क्वांटिटी रजिस्ट्रेशन का। जब भी कभी वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा डीजीएफटी के साइट पे भी मिल जाएगा। वो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, ये है। तो सिंपल है, आईसी होल्डर जो भी हैं, आईसी होल्डर अपना वो जो आईसी होल्डर है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले करके आप भेज सकते हैं अपने मटेरियल। या पीडा की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो है डीजीएफटी में आपका जो भी मैंने ऑपीडा को भी दे दिया, बहुत सारे चीज को ऑपीडा को भी दे दिया।
बहुत सारे चीज निकलते निकलते, जैसे अभी इसमें से निकल करके फिर वहाँ कॉमन प्लेटफॉर्म है घुसने के लिए, वहां से फिर डाइवर्ट करता है। अभी अभी एपिडा को भी दिया इसका। तो फ्री था उस समय जब रजिस्ट्रेशन में हम लोग डीजीएफटी दे रहे, डीजीएफटी राइस और व्हीट दोनों का। ये अभी भी हमारा साइट पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट के लिए, उसमें भी आप देख सकते हैं। और अभी अभी के दिनों में बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिहार के लोग धान को भेजने के लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। धान में क्या प्रोसेस उन लोग करेंगे वहां पर फिर धान को? नहीं, धान को प्रोसेस वो भेज रहा धान, यहाँ भी जो पैडी राइस इन हस पैडी हेलो जो सर। रिस्ट्रिक्टेड है। हेलो सर। अब जी जी सर मेरे जो क्वेरी था। हाँ हाँ। सर जैसे मखाना तो वगैरह जैसे है, मखाना हम लोग वगैरह यूएस वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या लाइसेंसिंग वगैरह की मतलब जरूर आवश्यकता होगी? आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आईसी के थ्रू ही। सिर्फ आईसी चाहिए उसमें सर, या फिर उसके अलावा और कुछ चाहिए? आईसी के थ्रू करेंगे और वो आपका जो उसका इंस्पेक्शन जो एजेंसी है उससे सर्टिफिकेट देगा। इंस्पेक्शन एजेंसी से सर्टिफिकेट ले करके आप अपना तो मखाना तो बस मैंने पैकेट करेंगे ना उसको, ये सर पैकिंग भी पैकेजिंग। करना है, और जैसे फ्लेवर्ड मखाना लाइक, क्योंकि जैसे कुरकुरे वगैरह आप देखते हो कि सर मल्टी बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में होते हैं और भी। हाँ, तो उस टाइप का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ वैसा लाइक फ्लेवर्ड मखाना, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स, और उसको हम यूएसए के मॉल्स वगैरह में हम लोग उसको वहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो लेकिन हम लोगों को मतलब पता ही नहीं कि मतलब करेंगे कैसे। तो अगर आपके एंड से अगर कुछ गाइडेंस और सपोर्ट लाइसेंसिंग को लेके, वो सारी चीजें अगर आप सर हमारी मदद कर सके तो। हाँ तो लाइसेंस इसमें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो आपको आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया है। नहीं सर, अभी तो नहीं लिया है सर। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड पहले सबसे पहले आप ले लीजिए। जी सर। और आपका जो प्रोडक्ट ये तो ये फ्री है। फ्री है बिल्कुल। हाँ इसमें लाइसेंस का स्पेशल अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। इनफैक्ट जब आईएसी हाँ इनफैक्ट जब आईएसी कोड लेने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आते हैं, कौन कौन सा चीज में आप इंटरेस्टेड हैं। वो तो आप सब टिक लगा दीजिए, हाँ, जो भी प्रोडक्ट तो है नहीं टिक लगा तो स्पेसिफिकली आप उस पर कर सकते हैं हाँ 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 और कर उस सकते हैं। बेसिस पर आईएसी कोड इजीली मिल जाता है। जी वो सिस्टम जनरेटेड है सिस्टम आईसी, अब तो कहीं ऑफिस जाने की आवश्यकता भी नहीं। आप जैसे ही फी पेमेंट करें। इवन यू वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज इन हेल्थ केयर और एजुकेशन, वो भी ऑप्शन। हाँ है ऑप्शन उसमें, तो आप उसको तो एकदम सिस्टम जनरेटेड है, आप आईसी जनरेट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है आईसी करने में। हाँ वही है कि एक साल में उसको अपडेट करना है। अपडेट नहीं करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाए, एक ज्यादा दिन डीएक्टिवेट रहेगा तो फिर सस्पेंशन में चला जाए। तो इसमें आपको समस्या नहीं है। जी आप बिल्कुल, और वो तो 1 घंटे के अंदर सर वो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाए। हाँ तो उस बेसिस पे करेंगे। और ये जो मखाना वाले बोल रहे हैं तो उसका एक इंस्पेक्शन एजेंसी है किनको दिया है, वो देख करके फिर वहां से आप सर्टिफिकेट लेकर के फिर एक्सपोर्ट करेंगे। वो सिंपल है, उसमें मखाना तो है ही हमारा तो नॉर्थ बिहार का तो ये सबसे बढ़िया चीज है। और निश्चित रूप से न मखाना भी हमारा बाहर के लोग उठा के ले जाते हैं। और हमारा यहाँ पटना ऑफिस में था उसमें या कलकत्ता में भी मखाना का एक्सपोर्ट करने वाले एक भी है, सर सब तो लास्ट बाहर टाइम चला। जब G20 समिट हुआ था, उसमें मोदी जी ने भी मखाना के लाइक फ्लेवर्ड मखाना को प्रमोट किया था। वो G20 समिट में प्रधानमंत्री और बहुत सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मतलब उनके टेबल पे वो मखाना का एक फ्लेवर्ड जो पैकेट है, तो वो उनके टेबल पे ही सर रखा था। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग एक्चुअली मिथिला से बिलोंग करते हैं, हमारा मिथिला और वैशाली मतलब इधर समस्तीपुर साइड का बॉर्डर एरिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस फील्ड में आए, और मतलब आप लोगों का एक सहयोग मिले तो हम इसको आगे करें। फ्लेवर्ड मखाना हम लोग स्मॉल स्केल पे बना रहे हैं, और उसमें लाइसेंसिंग वगैरह जैसे कि टेस्टिंग वगैरह के लिए हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कितने दिनों तक वो खराब नहीं होगा, और वो सारी चीजें सर हम गाइड जो वो सारी चीजों पे से हम लोग गुजर रहे हैं सर। तो आपका वहाँ दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर है। अच्छा जी सर। दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर है, उसमें आप एक बार जाएं ये और सर। वहां से भी काफी कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है। ये वो सर।
इसमें कैंपस में ही है। इंदुशेखर सिंह जी है वहाँ पे। और डायरेक्टर है। हाँ, डायरेक्टर है मखाना रिसर्च सेंटर के, तो आप उनसे ये जाकर मिल सकते दरभंगा में आप कहाँ पे है सर? ये कैंपस में ही है, ये कॉलेज जो हैं। है। आप कॉलेज कैंपस के जस्ट बगल में है, हाँ, कॉलेज है। कॉलेज तो का नाम क्या है सुधीर सर? मखान रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मखाना रिसर्च सेंटर। ठीक है सर, अगर कुछ कांटेक्ट नंबर सर का मिल जाए तो। पहले आपको नहीं तो जैसे, हाँ कोई बात नहीं, यस कर सकते हैं, तो उसके आ गए बीच में तो कोई प्रॉब्लम। सर ये हमारा रेटिंग ऑफ जो आईसीडी बन रहा था उसका अभी क्या हो सकता है उसका? बेटा वाले का तो हमको बहुत आइडिया नहीं है यहाँ का क्या हो रहा है। सर मैं अभी में चालू होने उसका प्रोसेस वो ड्राई पोर्ट की बात कर रहे हाँ, तो अभी तो ऐसा कुछ हमको इसका आइडिया नहीं है कि बेटा वाला कब चालू होगा कि ड्राई पोर्ट। एक ही तो पोर्ट यहाँ सर पर अभी है। नमस्ते सर। मेरा नाम अर्पित हुआ और हम बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सर हमारे पास ऑर्डर मॉरिशस, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सब कंट्री से, मालदीव से ऑर्डर आता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट तो में क्या इसको प्रॉब्लम? हम खुद से हम बाहर डायरेक्ट में कोई चैलेंजेस सर, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, या बीच में बहुत सारे हडल्स हैं जो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एनी टाइम आई लैंड मीटिंग अ मीडिएटर। दोनों सर कराइए। उसमें क्या करना होगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईसी कोड जैसे ही आप लेंगे, तो ये जीपीओ से आप जी सर। लीजिए, रिकॉग्नाइज, ठीक है। कहाँ वहां से से? जीपीओ पटना में है, ओके। पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है, जीपीओ पटना। जी जी वहां से आप आईसी कोड लीजिए। सीपीएम जी। यू जस्ट हैव टू पे 5,000 जी। ऑनलाइन फॉर गेटिंग दैट सर्टिफिकेट, ठीक है। यू कैन पे थ्रू ओके यूपीआई और नेट बैंकिंग एनीथिंग, राइट। और ओके उसके बाद डीएन रजिस्ट्रेशन तुरंत कर लीजिए, उसी ओके आईएससी कोड डालिए। डीएनके पे रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे हो जाएगा, साइट पे ही हो जाएगा। ओके। और आप फिर, जैसा मैंने बताया कि फिर आप वहां से टीपीओ के थ्रू ही आप अपना ऑर्डर जो भी आ रहा है उसको आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर जीपीओ आकर के, पटना जीपीओ आकर के मिल लूं, तो ये मतलब ऑल द थिंग्स विल बी डन एट अ टाइम, और इट्स अ टाइम Yeah, बाउंड yeah. प्रोसेस? So it hardly takes an hour to get the IC code, you'll get the certificate, and then you do the DNK registration right there only, and then you can start your business. Which हब में registration sir? Can you आप please? ये कह रहे हैं कि अगर दिक्कत होगा तो वीहब में आकर के आप कनेक्ट कीजिएगा, लोग वहाँ हेल्प भी कर देंगे। पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ से हम लोग बोल भी देंगे, वहाँ आपको दिक्कत सब उनका ग्रुप ठीक। भी है तो। हेलो सर, मैं ठीक है सर। हेलो सर, मेरा नाम निशांक शेखर है सर। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का सर फाउंडर हूँ। सर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए कोई संस्था है जो हेल्प करती हो या कनेक्ट करती हो यूरोपियन मार्केट से या इस तरीके से? बहुत सारी हैं। अ, आप सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। SCPI, हाँ, एसडीपीआई भी है, टीईपीसी भी है, एसईपीसी भी है, एसईसी भी है। मतलब 6-7 संस्थाएं हैं भारत में, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो डायरेक्ट जो है बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन, बायर सेलर मीट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार हर जगह, यूएस से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर हर जगह कराती है। तो उनके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बायर भी मिल जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जी, थैंक यू सर। Sir, एक myself रिक्वेस्ट करता हूँ, Sweetie from पहले Bhagalpur. पहले आपका प्रेजेंटेशन सर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सारा लास्ट के लिए हम रखते हैं। प्रेजेंटेशन का तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलने दे। हाँ, चलने दीजिए ना, ठीक दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वाले हैं ये बात नहीं, ठीक। बताएंगे तो Sir, प्लीज my प्लीज कंटिन्यू। Sir, myself Sweetie from Bhagalpur.
हेलो जी बोलिए। बोलिए, ask the question please. सर, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मस्टर्ड प्योर ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल और सत्तू की। और मैं साइड से भागलपुर से कतरनी चूड़ा और चावल का भी ट्रेडिंग करती हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मस्टर्ड ऑयल और सत्तू। तो मैं कैसे इंटरनेशनल मार्केट में मतलब जाऊं? मैंने आईएससी कोड भी ले रखा है। ये आपका प्रोडक्ट जैसे ये कतरनी कतरनी चावल बोली ना आप? जी, सत्तू। कतरनी चावल कतरनी चूड़ा भी है हमारा, और सत्तू है बिहार का जो फेमस होता है, देसी फूड के नाम हाँ से जाना जाता है सत्तू। हाँ हाँ, तो आप तो देख लीजिए नुस्खा जो HSN कोड है, जिस बेसिस पे उसमें आपको एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी कंडीशन हाँ। है उस तो आपने ले ही लिया है हाँ और जी। आप सर्च सर्च में करके आप किस कंट्री में भेजना चाह रही हैं, आप वहां सर्च करके और फिर ये जो आप HSN कोड को देख लीजिए किस कंडीशन पे वहां पे चला जाएगा, इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं है, हम भेज सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए मुझे और कैसे गाइडलाइंस मिलेगा, कैसे लिंक मिलेगा, मैं कैसे आगे क्या बढ़ू? एचएसएन कोड तो 1101 है हमारा। तो फिर हम हाँ कैसे इसको आगे बढ़े? और गाइडलाइंस हमें चाहिए कि फर्स्ट टाइम हमारे लिए है, तो प्रॉपर हैंड होल्ड मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, तो मैं आपका ना किस कंट्री में भेजना चाह रहे हैं? तो हमें इसका कोई इसमें आइडिया ही नहीं है, जस्ट हम लोग को टू इसमें ईयर मैं ऐड स्टार्टअप है करता हम हूँ लोग का। इसमें मैं ऐड करता हूँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी तक जिन्होंने शुरू नहीं करा या मार्केट रिसर्च करना चाह रहे हैं कि कौन सी कंट्री में उनका प्रोडक्ट जाता है स्पेशली, और कैसे वो देखे कि वो कौन से कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट जी। ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाटा बैंक। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जी। की वेबसाइट है। इम्पोर्ट जी। एक्सपोर्ट डाटा बैंक में जब आप जाएंगे, आपको कमोडिटी वाइज, कंट्री वाइज, वैल्यू वाइज आपको मिल जाएगा। आप अपना वहाँ HSN कोड डालिए, आपको जो है अफगानिस्तान से लेकर जेट जिम्बाब्वे तक सारी कंट्री की लिस्ट जी। आ जाएगी। 2022-23 में उस कंट्री में आपका प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट हुआ, 21-22 में कितना हुआ, 20-21 में कितना हुआ, आपको 3 साल का ट्रेंड दिख जाएगा। तो अब आपको वहां पे आप देखोगे तो आपको टॉप 10 मार्केट मिल जाएगी कि कौन सी टॉप 10 मार्केट यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। आपको इमर्जिंग मार्केट भी दिख जाएगी कि 20-21 में 5 मिलियन हुआ, 21-22 में वो बढ़ के 50 हो गया, अब 100 मिलियन हो रहा, तो इमर्जिंग मार्केट भी आपको दिख जाएगा। तो वहां से आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलो ये 4-5 कंट्री है मेरे को टारगेट करना, तो वहां से आप शुरू कर सकते हो। जैसा सर ने फिर बताया कि अगर आपके पास आईसी का लाइसेंस है, सेकंड जो जी। है आप RCMP जरूर ले लो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आप सॉफ्टवेयर में हो तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चावल आटा गेहूं दाल मखाना में हो आप बीडा, अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स में हो तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप कपड़े में हो अपैरल में हो तो आप अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। पूरी लिस्ट है, अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लिस्ट अगर आप टाइप करेंगे, या फिर हम लोग बैठे ही आप हमसे भी अब सलाह ले सकते हैं, तो वहां से आप जो जी। है ECGC की लाइसेंस ले लीजिए, कंट्री को टारगेट करिए। वहाँ बहुत सारे MSME का बहुत सारा एग्जीबिशन फ्री भी होता है, बायर सेलर मीट भी फ्री होती है। आज आजकल तो इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहे हैं जहाँ इंटरनेशनल बायर ट्रैवल करते हैं, आपको खर्च करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप जी। टारगेट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से शुरू आप कर सकते हो। जी। ओके। थैंक यू। हमारा ये DGFT का बहुत सारा स्कीम्स है जो एक्सपोर्टर के बेनिफिट के लिए ही है। अब इसी में एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट बेनिफिट है भी ये भी। इसमें आप यदि आप इसको रजिस्टर यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके उसके बिहाफ में DGFT आपको एक 1 हाउस एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट, 2 हाउस एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट जो देगा, 2 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट। इसमें आपका एक्सपोर्ट के ही अनुसार से, और उसमें है कि आपको यदि ये सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको माल क्लियरेंस में बेनिफिट मिलेगा, बैंक रियलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, और भी तरह से ये फायदा की ही स्कीम है ये स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट। तो और फिर
बाकी तो देखना है यहाँ मार्केट को कि कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे। बिहार में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर का है नेबरिंग कंट्री में ही हम लोग एक्सपोर्ट का शुरुआत कर सकते हैं यदि चाहें आप लोग तो। नेपाल बहुत बड़ा यहाँ का, जैसे हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसी ढंग से नेपाल का एक्सपोर्ट बिल्कुल बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है नेपाल के लिए। इवन कि मैं देख रहा हूँ जो सटे हुए जितना भी हमारे यहाँ जो जैसा रक्सौल का बॉर्डर है, तो वहाँ का आदमी दुकान है 100% आदमी एक्सपोर्ट करता है। जो माल वहां पर लगता है कि नेपाल में भी कि थोड़ा कम रेट का है, यहाँ से वहां कर देता है। यहाँ थोड़ा कम रेट में है, वहां से यहाँ आ जाता है। ये जोगबनी में भी देख रहे हैं, और सारा का सारा बिजनेस तो यही दोनों जगह पे देख रहे हैं। मैंने बड़ा रूप में, काफी बड़ा रूप में काम करने वाला यहाँ दोनों। और इन लोगों का सब ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये राइस जो अपना बिहार का प्रोडक्ट है, व्हीट, ये पैडी, और ये तो बताया मखाना। मखाना बहुत ज्यादा जान नहीं पा रहा है, कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ पे कमी रह रही है। मगर ये सब का तो एक्सपोर्ट नेपाल और बांग्लादेश दोनों कंट्री में बहुत बढ़िया से हो रहा है, बहुत बढ़िया से, काफी बढ़िया। नेपाल में तो बल्कि बांग्लादेश में तो वहां देख रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा यहाँ कोलकाता का जो एक्सपोर्ट है वो प्याज का भी एक्सपोर्ट में है। और फिर ये हम लोग मछली का भी यहाँ दीघा से, दीघा जो वहाँ का दीघा है, हाँ दीघा से मछली का भी बांग्लादेश भेजता है। और पहले उस स्कीम में जो MEIS का स्कीम था जो भी बंद हो गया, उसमें उनको 2% 2.5% हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंसेंटिव मिलता है। तो आज भी सर वो थोड़ा सा अगर आप बताएं, जो रोड टेप की स्कीम है, जैसे आप 100 रुपया अगर एक्सपोर्ट करते हो तो सरकार 2 से 5 रुपया वापस करती है, हाँ उसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप। तो अभी है स्कीम हमारा, तो एकदम तो पूरा तरह से ऑनलाइन कर दिया वो सिस्टम। अभी डीजीएफटी के प्लेटफॉर्म पे यदि आप ऑनलाइन क्लेम करते हैं रोड टैप का स्कीम में भी, तो वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड ही है, अप्रूव करेगा डीजीएफटी और वो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, जो आप रियलाइज कर लीजिए पैसे। रोड टैप में भी, MES में भी यही था। MES में है कि फिजिकल पेपर जमा करनी पड़ती थी, फिजिकल पेपर जमा करके फिर उसको हम लोग शॉर्टिंग करके फिर देखते थे, अप्रूव करते हैं। अभी भी चूंकि पैसा अभी छोड़ा नहीं है गवर्नमेंट, मगर स्कीम चालू है, पैसा अभी मिल नहीं रहा है। और काफी अच्छा स्कीम है MES का ये स्कीम। स्कीम बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि अगर आप कुछ सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको छोड़ दिया है कि आप अपना पैसा खुद कमाओ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आप 10 का बेचोगे, जो चाइना चाइना वाला बैठा है 9 में बेचने के लिए, 8 में बेचने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, शायद मेरे पास है बुकलेट, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, अगर नहीं है तो निकाल के। उसमें ना सारे प्रोडक्ट की डिटेल है कि कौन से प्रोडक्ट पर सरकार कितना वापस करती है। मान लो अगर आप 100 रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आई थिंक फूड में सबसे ज्यादा है, 3 से 5 रुपए के बराबर है। जी बिल्कुल, और 5 रुपए तक भी है। 5 रुपए तक है, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो होगा क्या कि मान लो कि अगर आपकी लागत 10 रुपए की है, आप अगर लॉस में भी बेच के आ गए कि चलो ठीक है, मेरे को तो ऑर्डर चाहिए, लॉस में अगर 1 रुपए के लॉस में भी बेच के अगर आप आए 9 रुपए के लॉस में, तो भी आप 4 रुपया कमा रहे हो, क्योंकि 5 रुपया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो 4% का मुनाफा आपको हुआ वहाँ। इसमें तो ये है कि मिनिमम 1 करोड़ तो होना चाहिए। 1 करोड़। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ये रोड टेप स्कीम है, बहुत अच्छी है। अगर आप जब अगर कोई एक्सपोर्ट करता है यहाँ से, तो प्लीज इसका बेनिफिट उठाएं। DGFT के साइट पे जाके एक बार रोड टेप स्कीम आप जाके देखो, नहीं भी करते तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी कौन से प्रोडक्ट पे कितनी है, आपको ये DGFT के साइट पे मिल जाएगी। अदरवाइज मेरे पास है सॉफ्ट कॉपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, वो मैं एक बार आप फॉरवर्ड कर दूंगा। पॉलिसी क्या है, ये डीजीएफटी के साइट पे एक एक चीज को खोल के देखेंगे, एक एक चीज मिल जाएगी। पॉलिसी का भी वो जरूरत नहीं है। वो तो हमारा डीजीएफटी के साइट जो सर्विसेज हमारा डीजीएफटी में है, एक एक स्कीम का सारा उसमें डिटेल्स दिए। सर्विसेज में जाएंगे, डीजीएफटी का सर्विसेज खोलिए और उसमें देखिए, और सारा चीज वो आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डालेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे। ऑफिस सिर्फ देख करके, बहुत सारा चीज ऑटो अप्रूव्ड है, बाकी ऑफिस अपना जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करके अप्रूव करेगा, अप्रूव कर देगा वो। ऑफिस दौड़ने का भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा डीजीएफटी में आपका हर दिन, आप जरा सा भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो 10:30 से 11:30 तक सारे इंडिया के सारे ऑफिस में VC फैसिलिटेशन का
वो आपको सुविधा उपलब्ध है 10:30 से 11:30। हर ऑफिसर वहां उस पीरियड में मिल जाए। लिंक भी दिया हुआ है डीजीएफटी के साइट पे। हाँ, मिलिए और कोई भी अपना डाउट वहां पर क्लियर कर लीजिए। आपका पेपर भी यदि वहां ऑफिस में कुछ रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है, ये सारी चीजें आपको वो वहीं पे डाउट। यदि बड़ा इशू आ रहा है तो एक दिन पहले आप मेल करके आप अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद से फिर डायरेक्ट मिलिए और वो देखिए 100% काम होता है। 100% एकदम, जरा सा भी कोई डाउट नहीं है। सारा काम एकदम हो जाता है ऑनलाइन में ही। खुद खुद 10:30 11:30 सारा ऑफिस मैंने इसी में लगा हुआ है। पूरे इंडिया का हर ऑफिस का वहां पर साइड लिंक दिया हुआ है। देखेंगे तो आप बहुत सुविधा हो गया है हर चीजों में भी। ऑफिस ऑफिस चक्कर लगाने का बात नहीं है, एकदम नहीं। और बल्कि डीजीएफटी में तो एंट्रेंस एकदम पूरी तरह से बंद। ऑफिस में जो विजिटिंग आवर था वो खत्म हो गया। जब से ये वीसी का सुविधा हुआ, ये 1 घंटे का, 1 घंटे का रोज का है। तो उसमें तो कुछ रहा ही नहीं है अब हम लोगों का कुछ करने का। लोग आते हैं अपना जब अपने क्वेरी को वहां पर डायरेक्ट पूछ करके वो सोल्व कर लेते हैं। हम लोग भी काफी सुविधा दिए हुए हैं। सारे लाइसेंस का जो भी स्कीम्स है उसमें तो एक टाइम निर्धारित है, इतना दिन के अंदर में आपको इश्यू होना ही होना। तो डीजीएफटी की तरफ से पूरी तरह से मन काफी सही ये सहयोग मिलता है और काफी हम लोग लिबरल हैं इस मैटर पे। लाइसेंस के तो रुकने में कोई प्रश्न ही नहीं है कि नहीं होता है। रही बात बाकी जो ये मार्केट वार्केट का, तो आप लोग तो हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वाले, उनसे आप संपर्क करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाए। पीओ का ऑफिस भी यहाँ है ना कि नहीं है? नहीं, फीओ का पीओ शायद का नहीं भी है। नहीं है ना? यहाँ नहीं है सर। चलिए, तो यहाँ हमारा कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कोई ऑफिस पोर्ट आप प्रमोशन काउंसिल सर नहीं है? यहाँ पे नहीं है, पहले बनारस पीओ था, पहले होगा पहले सर। पीओ यहाँ था। तो मतलब काफी हाँ, पीडा भी बनारस से ऑपरेट करती है। ऑपरेटर बनारस है ना। बाकी तो कलकत्ता में तो है। कलकत्ता में कलकत्ता से काफी है। ईपीसी है बहुत सारे। हाँ। ईपीसीएच भी है। हाँ, वहाँ तो सब सब है। वहाँ तो मतलब कि रीजनल ऑफिस। हाँ, सारे ऑफिसेज है वहाँ। वहाँ बेसिकली कलकत्ता कलकत्ता भी तो बहुत दूर नहीं है, ये कुछ होता है। और वो सारा प्रोग्राम तो सब, बल्कि ईपीसी का भी जितना भी सारा स्कीम भी तो ऑनलाइन है। वो लोग भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे देते हैं। जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए, मतलब जो आपने सर ईपीसीजी की स्कीम बताई थी, वो हाँ इतनी अच्छी स्कीम है कि हाँ अगर आपको अपने आपके यहाँ पे कोई मशीनरी प्लांट लगानी है जो कि इंडिया में मिलती नहीं है, अगर आप इंडिया से बाहर से लेकर आ रहे हो लेट सपोज, और उसमें मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो उसमें डीजीएफटी की क्या सुविधा है कि ईपीसीजी के थ्रू आपका इंपोर्ट ड्यूटी वो नहीं लगता है फ्री कर आपको, देगा। वो फ्री हो जाता है। जीरो है, 0% मैंने ड्यूटी। उसका बस एक ही शर्त है कि आपको 6 साल में 6 टाइम्स आपको 6 टाइम्स, एक्सपोर्ट अगर 15 लाख की मशीनरी है तो 15 लाख × 6, करना, आपको उतना आपको एक्सपोर्ट करना होता है 8 साल में। 6 साल और 2 साल 6 एक्सटेंशन हो गया। 2 साल, 8 साल में आपको तो बहुत लिबरल। सब साल 2 ही 3 साल में लोग कर लेते हैं। देखा है हमने, 2 साल 3 साल में भी वो फुलफिल कर देते हैं। तो ये तो है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम एकदम कंटिन्यू चल रहा है जो कहा जाए। ये बहुत अच्छा हाँ एक्सटेंड करवाया भी गया था सर, काफी अच्छी हाँ। स्कीम। बाकी सारे स्कीम में तो बहुत सारे चेंजेज आ जाता है, मगर ईपीसीजी में तो कुछ नहीं, ईपीसीजी चल रहा है। सबसे बढ़िया ये बीजीएफटी का स्कीम है अभी तक का। गड़बड़ी तो इसमें एकदम नहीं। एडवांस ऑथराइजेशन में गड़बड़ी हुआ, माल मंगवा लिया ड्यूटी फ्री, और ये लोग बहुत सारा लोकल बाजार में बेच दिया। फेक इंस्टीट्यूशन मैंने रखा, खूब खूब पैसा कमा लिया मैंने बहुत सारा। मगर इसमें वो चीज नहीं रहेगा, तो फिर तो एडवांस ऑथराइजेशन में था पहले। आप एडवांस ऑथराइजेशन अभी भी है सर या नहीं है? एडवांस जरा है। उसमें उसमें यही है कि अगर आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, मशीन मतलब रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, उसमें अगर आप अपना इनपुट ऐड करके फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल मंगवाने में जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगता है वो नहीं लगेगा। तो यदि एक्सपोर्ट लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना है 90%, शायद हाँ 80 या 90% हाँ का सीलिंग, एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल उसमें रहता मिला है कि रॉ करके मटेरियल सब कितना परसेंट एक्सपोर्ट करना होगा? 80 to 90% वैल्यू का जो आप मंगवा रहे हो। लेट सपोज कि आप रबर मंगवाए आपने, आप उसका टायर बना के बेच रहे हो, तो रबर की वैल्यू अगर 100 रुपए है
तो आपको 90 रुपए का टायर तो उसी रबर का बना के बेचना पड़ेगा। एपीआई मंगा रहे हैं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हो कहीं से, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अगर आप चाहते हो कि अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन में अगर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगे, तो उसका एक ही शर्त है कि आपको 80 to 90% उसका एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए मंगवा रहे हो तो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। लगे। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आप वहां पे इम्पोर्ट ड्यूटी 100% बचा सकते हो, बशर्ते आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दिखा सकते बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना, हमको लग रहा है 200% ड्यूटी होगा। हो। हाँ सर। है ना, तो इसलिए फायदा है ज्यादा। ज्यादा, फायदा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट है डिमांड अपनी आती है। सर एपिडा का, सर बनारस में, यहाँ पटना में कहीं इनका ऑफिस नहीं है? पीड़ा एपिडा, पीड़ा का बनारस में है, पटना में नहीं। ऐसा तो सर ने इनवाइट किया था वहां पर, जब फंड अपना हुआ था तो आए थे। बिटा के सर तो बढ़िया बोल रहे हैं कि डीजीएफटी का भी एक, सारी बातें हम डिटेल्स नेक्स्ट टाइम यदि कभी मिलने का होगा तो हम डायरेक्ट इस बार हमें काफी बढ़िया से वहाँ ऑफिस को ब्रीफ करेंगे इसके लिए, और निश्चित रूप से बढ़िया रिजल्ट है ये आगे, है कि लग रहा है इतना अच्छा चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आप ये बढ़ना ही बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसमें सर दो पॉलिसी अपनी और बच जाती है जो मेरे नॉलेज में, वैसे तो आप बहुत सारी पॉलिसीज चलाते हो। हम एक बोले तो कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ theory वाले। मैं तो चाहता हूँ एटलीस्ट जी, मुझे जितना ज्ञात हो सबको। पूरा बढ़िया से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ही लोगों के साथ बैठे बैठे सर मेरे को देख नहीं रहा हूँ कि काफी बढ़िया से एक्सप्लेन आप कर रहा है, आप करिए ना, बहुत बढ़िया। नहीं, एक आपकी सर वो निर्यात बंधु स्कीम है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल। हाँ, तो हम लोग निर्यात बंधु स्कीम में तो बस निर्यात का बढ़ावा देने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्यात बंधु स्कीम है। तो उसका तो इधर इधर पटना में इधर और नहीं हुआ है, इधर हाल के दिनों में का नहीं हुआ। इसके लिए वो बहुत सारा जो आया भी स्कीम, तो दो स्टेट को, दो डिस्ट्रिक्ट को चुने थे, एक दरभंगा और दूसरा भागलपुर। क्योंकि उस दरभंगा का जो एरिया है, जो आपको देखा आपने, ये मखाना वाला के लिए, वहां पर वहां प्रोग्राम हुआ था पिछले साल, इस साल तो प्रोग्राम नहीं हुआ। और भागलपुर तो आपका टेक्सटाइल है, कतरनी चावल है। करनी चावल, और ये हाँ दिया है, दो दो स्कीम को चुना था निर्यात बंधु स्कीम। मेरी कोशिश इस बार रहेगी कि मैं पटना को ही चुनवाऊं और पटना में ही प्रोग्राम करूं। बेसिकली हो गया कि उस समय से काफी लोगों का इश्यू हो गया दरभंगा एयरपोर्ट खुलने से, तो दरभंगा को तो काफी, पता नहीं, पटना यदि बढ़िया से यदि देखा जाएगा तो पटना में ही ये प्रोग्राम होनी चाहिए, उसके बाद ही मैसेज जाना चाहिए दूसरे जगह। तो हुआ है वहां प्रोग्राम निर्यात बंधु स्कीम का। तो बेसिकली एक्सपोर्टर में है, जो भी जरा सा भी जो कहीं पर भी उनको किन्हीं का असुविधा हो रही है, तो उसके लिए तो ऑनलाइन, मैंने उस समय में भी ऑन स्पॉट भी हम लोग समस्या का समाधान किए हैं उस स्कीम में ही। और भागलपुर और दरभंगा, ये दो जगह पर हमारा प्रोग्राम चला है। पूरा टारगेट रहेगा इस बार कि हम पटना में भी ये प्रोग्राम मैं कर लेटर सकते हैं, लिखूंगा। निश्चित रूप से। या इधर फिर नहीं, पटना नहीं, हाँ पटना को ही करें। हाजीपुर को भी लोग देख बोलते हैं, वहां पे बाहर वाले को लगता है कि हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री है, तो वहाँ प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर नहीं, पटना टारगेट हमारा रहेगा, हम लोग इस बार देंगे वहाँ पे, हम बात करेंगे और पटना के लिए ही करेंगे। और उस स्कीम में भी यही, जैसा हम लोगों ने इधर बात किया ना, बेसिकली निर्यात बंधु स्कीम में भी यही चीज है कि आप जा जा करके एकदम पहुंच पहुंच करके जहां जहां पे लगे कि क्षमता है एक्सपोर्टर का, वहां पे जाके आप उसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का ही वो स्कीम। तो हमारा एक्टिविटी निश्चित रूप से अभी बढ़ेगी इन दिनों में, चलेंगे। और निर्यात बंधु स्कीम का हम भी प्रोग्राम में करवाते हैं। काफी कुछ लगा कि सर भी इन्होंने बताया कि हम अपने कैंपस में भी एक देते हैं स्पेस जहाँ पर कि रहे अपना एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन का सेल चले वहां पर, और जरूरी है। लोगों के आए जाए मिले। सर ने भी काफी कुछ बताया था, तो जब हम लोग इस मीटिंग में आने से पहले भी बताया, और हमको लगा कि ये लोग तो काफी कुछ पहले से ही एक्टिव है इसमें। चलाया है सर, आपने भी तो प्रोग्राम चलाया है ना सर, प्रोग्राम चलाया है, तो हमारे लिए तो ये पहला अनुभव,
मगर चलिए वो लगेगा आगे आगे का प्रोग्राम में हम लोग निश्चित रूप से और बढ़िया से बढ़िया 500 सीटेड का ऑडिटोरियम है, फुली सेंट्रली है, विशाल टू वीकेंड वो स्टेट लेवल के भी प्रोग्राम। स्टेट लेवल कन्वेंशन क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट में रियाद बंधु हम करेंगे, वो CIMP जो ऑडिटोरियम, हाँ हाँ वो स्टेट लेवल पे ही हम करते हैं। हम दरभंगा भागल हम वो क्यों छोड़े, दरभंगा भागलपुर और इधर गया, सब जगह से बुलाते हैं। असिस्टेंस भी है वहाँ बुनियादमंद स्कीम का पूरा उसको की काफी कुछ मैं उसको बढ़ चढ़ करके इस बार हम ऑफिस में अपना प्रोग्राम इसको करवाते हैं समझ कर। क्योंकि देख रहे हैं स्कीम में इसमें होता है कि फेंका फेंकी हो जाता है बिहार के केस, बाकी दूसरे जगह पर तो लोग चले जाते हैं। हाँ। बिहार के केस में मतलब प्लाने को फेंका फेंकी हो रहा है, इसका मतलब अवेयरनेस तो यहाँ ज्यादा है। अब देख रहे हैं भारत प्रोग्राम ही नहीं हो रहा है, प्रोग्राम चलेगा। नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे अपने हैं पोटेंशियल जो करना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिकली बेसिक नॉलेज तो पहले चाहिए कि कैसे हम शुरू करें, कहाँ से मार्केट ढूंढे, और कोई हैंड यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ही फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ है मैंने जब मैं अपना अनुभव देखा कि लोग यहीं से एक्सपोर्ट करते रहे और यहीं के का बाहर के आदमी आके यहाँ से काम करते रहे। ये चावल जा रहा है, पैकेजिंग यूपी में हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे थ्रू, बिहार से ही जा रहा है। बहुत बड़ा एरिया है सासाराम का एरिया, तो चावल का सबसे बड़ा है। मेरा सर होम टाउन है सासाराम, हाँ हाँ और मेरा जो स्टार्टअप है वो टेक्नोलॉजी में है। हाँ पर राइस का जो हमने सप्लाई देखा, जो अभी आप बता रहे थे, जो फिगर आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, हाँ हाँ हम सर इस साल अचीव कर लेंगे उसके पूरे उत्तर प्रदेश को अकेले, यहाँ से ही बिहार से, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा सब कुछ। सिद्धि विनायक तो वहाँ है ना सिद्धिविनायक बड़ा, भी है, हाँ काफी बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। प्लांट लगाया है। बेबीलोन का भी प्लांट बड़ा है। हाँ तो ये तो है, तो वो लोग भी तो एक्सपोर्ट में है, बिल्कुल। पूरा एक्सपोर्ट में। हम्म। बिहार गवर्नमेंट तो उन लोगों उनको सारा चीज सुविधा दिया, जी और माल तो वो लोग फिर भेज रहे हैं, यूपी में जा रहा है पैसा, हमारे यहाँ हमें चाहिए सही कहा गया। आएगा सर। बिहार गवर्नमेंट जो हाँ थी ये उस समय में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री शायद लगता है रेणु कुशवाहा थी, उसी समय में वो इतना बड़ा प्लांट वो लगा बिहार गवर्नमेंट हाँ 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 फाइनेंशियली असिस्टेंस बिहार गवर्नमेंट जी जी। चला भी। तो करिए, इसको अचीव तो कर सकते हैं। अभी FRK वाला भी राइस का सर, जो वो अभी आया था गाइडलाइन, जो FRK राइस, हाँ हाँ उसको भी जो 100:1 के रेशियो पर डालना है, जो नॉर्मल चावल में, उसका भी FRK का हमारा हाजीपुर में ही प्रोडक्शन है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस के, इसके लिए हमारे माँ अम्बे इंडस्ट्री जो है। सिल्क का भी अभी कारोबार जो टेक्सटाइल का पूरा था भागलपुर का, भागलपुर अभी एक भी आदमी एक्सपोर्टर नहीं है। जो वहां से माल चला जा रहा है बेंगलोर, माल बन रहा है यहाँ बेंगलोर जा रहा है, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे जो करते भी हैं सर, वो जाते हैं मल्टी ट्रेड एग्जीबिशन के लिए चाइना और यूरोप में। हैं। हाँ हाँ वहाँ 14-15 दिन का एग्जीबिशन लगाते हैं और एक एक प्रोडक्ट बेच कर आते हैं। बल्क में यहाँ से अभी कोई नहीं कर। नहीं कर रहे तो लाइसेंस तो ले ही नहीं पा रहे हैं तो। सर एक्चुअली प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को मतलब जो ऑथेंटिक बायर है वो नहीं मिल पाता है। जैसे अभी हम रसिया में एक कंटेनर अपना भेजे थे टेक्सटाइल का और कुछ हमारा हैंडीक्राफ्ट का था, और दुबई में हमारा गया, बट और किस मतलब कंट्री में हमें बायर मिल सके ऑथेंटिक का, हमें यही नहीं पता चल पाता है। तो कैसे हम उनके साथ पहुंच पाए या उनके पास पहुंच पाए हम अपने प्रोडक्ट। तो मेन प्रॉब्लम तो बायर को लेके होती है। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, प्रोडक्ट रेडी कर लिया, बट अब खरीदार हम अपने सामान को वहां तक सेल करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे होती है। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पहले जुड़ जाइए, सर उनसे हेल्प लीजिए। आप भी है आप EPCH के मेंबर हैं, APC के हाँ किनके मेंबर आप? IPC। ICPC के, इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट में। तो अगर आप ICPC आप मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप EPCH के मेंबर बनिए। EPCH के इसलिए क्योंकि ICPC मिस्टर चड्ढा प्रोग्राम तो करते हैं, बट उतना नहीं करते हैं। EPCH साल में तकरीबन 72 से 100 प्रोग्राम करती है, और सब में वो टेक्सटाइल का उनका होता है। तो और बहुत सारे प्रोग्राम वो बहुत ही कम इसमें भी करती है, और MSME भी उनके साथ जाता है। तो आपको 2-3 प्रोग्राम तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। तो आप वो MSME वाली तो सर ऑफकोर्स हम लोग को मतलब हो जाते हैं, इंटरनेशनल या नेशनल दोनों। इंटरनेशनल नेशनल दोनों हो जाता है। और इनफैक्ट EPCH भी बहुत सारे जैसे कि EPCH का 2 एग्जीबिशन लगता है ग्रेटर नोएडा में, तो आप वहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करो। वहाँ सिर्फ फॉरेन बायर ही आते हैं, और फॉरेन बायर के लिए ही है IHGF, इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड गारमेंट फेयर।
तो अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हो तो वहाँ जरूर पार्टिसिपेट करो आप। और ईपीसीएच के साथ साल में आप 3-4 कंट्री आप चूज कर लो और वो कंट्री पे आप पार्टिसिपेट करो। आप जब जाओगे, जब आप मिलोगे, तो ही आपको बायर मिलेगा, ऑथेंटिक बायर। वरना आपको डीलर डीलर ही मिलते रहेंगे जो बोलेंगे कि आप, हाँ बेटू मैम वगैरह कर वो आपको, हाँ, डीलर ही मिलेंगे कि आप हमें बताओ, हम इतना कट लेंगे, आपको बायर देंगे। वो पेमेंट आपको 3 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। आपको जाना पड़ेगा। और सर ये जीपीयू वाला सर हम बता रहे थे ना, तो जीपीयू वाले में सर प्रॉब्लम होती है ना कि एग्जैक्ट वो उनका कुछ फिक्स है, जैसे 30 किलो 25 किलो वो ऐसे ही सेल करते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, और उनका जो रेट भी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे प्राइवेट जो खरीद करते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हाई होता है जीपीयू का। मैं इधर ही जीपीयू से मतलब करी थी कुछ कुछ, उनका फिक्स होता है। जैसे 250 ग्राम का वही अभी चाइना में वो सेल कर देते 800 रुपया है, और पर 250 ग्राम फिर वही 80 रुपया 70 रुपया ऐड होता है, तो उनका बहुत ज्यादा चार्ज होता है जीपीयू को भेजने में। प्राइवेट कोई उससे सस्ता पड़ रहा है, जैसे प्राइवेट हमें सबसे सस्ता जाता है हम लोग। पर ये तो अनिल सर ने जो उस दिन प्रोग्राम किए थे वो तो जीपीओ वाले प्रोग्राम को बहुत बेहतर बता रहे थे। पर जब आप ऑथेंटिक जाएंगे ना, ऐसे स्टार्टअप आपको जहां से चीप पड़े आप वहां पे कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या, नहीं नहीं मैं बताता हूँ होता क्या है, क्यों महंगा पड़ता है कुछ जगह, क्यों सस्ता पड़ता है कुछ जगह। होता क्या है कि बहुत जगह ना ट्रेड ट्रेड पार्टनर्स होते हैं। आरी रॉजर्स हो गया, या बहुत सारे जो प्राइवेट पार्टीज हो गई, तो सबका ना अपना अपना रीजन होता है जहाँ वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मलका अमित और ब्रिंक्स आर्या जो है यूएस में स्ट्रांग है, आरी रॉजर्स आपके मिडिल ईस्ट में स्ट्रांग है। तो जो जीपीओ जिनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, हो सकता है कि वो 50 कंट्री में बहुत सस्ते हो, 1-2 कंट्री में महंगे हो। तो आप तो आप बिल्कुल तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर आप एग्जीबिशन में जा रहे हो तो वहां का जो ऑफिशियल फ्रेट फॉरवर्डर है आप उसी को चुनो। अगर आप एमएसएमई के थ्रू जा रहे हो तो एमएसएमई लिस्ट प्रोवाइड करती है 3 से 4 ऑफिशियल फ्रेट फॉरवर्डर का। आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सबसे रेट मंगवाना पड़ेगा आपको कि मेरा ये सामान है, क्या रेट है। जो सबसे सस्ता दे, जो आपको सही बैठे, उसके थ्रू ले जाओ, क्योंकि वो ऑफिशियल पार्टनर है, आपका सामान कहीं जाएगा नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 2 पैसा महंगा ही पड़े, जीपीओ से ही भेजो, क्योंकि आपको पता है कि आप कल यहाँ पे ऑफिस में जाके बैठ सकते हो। एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो तो ऑफिशियल ट्रेड पार्टनर, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीपीओ। पर सर उसका फिक्स होता है ना कि उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, जीपीयू में कुछ केजी तक ही फिक्स है। हाँ, तो फिर आप क्या कहते हैं, जो आप जिन मान लो कि अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हो और एक कंपनी के साथ आपने 3-4 बार कर लिया है, तो होता क्या है, बहुत सारी कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप दुबई जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, हांगकांग जा रहे हो और यूएस जा रहे हो, 4 जगह जा रहे हो साल में। 4 जगह में से 3 जगह जो है, आप मान लो कि आप आरी रॉजर के साथ लेके जा रहे हो, तो आपकी जो पर्सनल जो रेपो बैठती है, तो बहुत सारे एक्सपोर्टर क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का। वो एग्रीमेंट ये होता है कि आप कहीं भी एक्सपोर्ट करेंगे आप उनके थ्रू करेंगे, और इसके बदले क्या होता है कि वो अगर आप 25 रुपये पहले चार्ज कर रहे थे, क्योंकि आप उनके आप एक्सक्लूसिव कस्टमर बन चुके, तो आपको 20 रुपये 18 रुपये करेंगे। ये आपको थोड़ा सा देखना। थैंक यू। एक लास्ट में और था, हाँ, जैसे एक्सपोर्ट तो हमने कर दिया। अब बहुत बार होता है कि बायर माल रिजेक्ट कर देता है कि ये जो हमने जो ऑर्डर दिया था, ये वो प्रोडक्ट नहीं है, या फिर वो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जो है थोड़ी सी गड़बड़ है। या फिर ये होता है कि हमने तो एक्सपोर्ट कर दिया ये समझ के कि जेन्युइन बायर है, लेकिन बायर जो है अब पैसा ही नहीं दे रहा, भाग गया। उस केस में भी जो डीजीएफटी की जो असिस्टेंस है, अगर हाँ थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा। है उसमें उसमें तो जैसे फिर इसमें के लिए भी आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी है। मेरे यहाँ से वो एक क्यूसीटीडी है, उसमें क्यूसीटीडी जो है उसमें आप कंप्लेन कर लॉन्च करेंगे कि अपना पूरा डिटेल्स देते हुए, तो हम लोग निश्चित रूप से अम्बेसी में लिखते हैं यदि फॉरेन बायर है तो, और हमारा डीजीएफटी लिखता है। और यहाँ आपको एक्सपोर्टर को भी हम लोग पर्सनली बुला करके ऑफिस में ही सारी बातों को समझते हुए, और सबसे पहले तो यदि यदि वो उसका पूरा एक्सपोर्ट को लाइसेंस को भी रद्द करने के लिए हम लोग एम्बेसी में लिख देते हैं।
और वहां पर यदि उन्होंने फॉरेन बायर ने भी कंप्लेन किया है यदि यहाँ पर कि पैसे, ज्यादातर तो वही कंप्लेन आता है। ज्यादातर हमने देखा है कि वही लोग, तो यहाँ हम लोग चूंकि हमारे अधिकार में है उसका लाइसेंस को सस्पेंड करने का, तुरंत में हम लोग लाइसेंस को सस्पेंड करके काफी कुछ नेगोशिएशन करते हैं दोनों के बीच। बाकी तो कोई इन्फोर्समेंट तो पावर है नहीं, जितना हो सकता है लाइसेंस रद्द करने वाला प्रक्रिया दोनों साइड से, दोनों तरफ का, इंपोर्टर का भी एक्सपोर्टर का भी, डीजीएफटी ये काम करता है। और इसी में भी बहुत सारा नेगोशिएशन हो जाता है, क्योंकि बिजनेस तो किसी को रोकना रुकना नहीं है। लगता है किसी न किसी रूप में दोनों तरफ से तालमेल होकर के समस्या का समाधान जरूर हो जाता है हमारे यहाँ से। और ये इसकी मैंने होता है कि जो भी कंप्लेन आता है उसका मंथली एक मीटिंग होती है हमारा डीजीएफटी में। उस मीटिंग में उसको रखा जाता है, उस केस को जेन्युइनिटी को देखते हुए लग रहा है जेन्युइन है तो उसी अनुसार से उसका सबसे पहला काम उसका आईसी को सस्पेंड कर देना, मैंने आगे अभी कुछ काम उनको करेगा नहीं। सस्पेंशन के बाद से फिर 2-4 मीटिंग तो होने के बाद हियरिंग चलती है। ज्यादातर केस में देखते हैं कि रास्ता निकल जाता है। निकलेगा, वो लोग पेमेंट तो करता ही है, क्योंकि बिजनेस तो करना है। बिजनेस रुक जाएगा तो काम होगा नहीं। और आईसी ही सस्पेंड हो जाने से तो सारा चीज रुक गया, तो कहीं कोई काम नहीं होगा। तो ये भी एक है, आप कंप्लेन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे ही जाए, और मेल भी भेज सकते हैं Kolkata-DGFT पे भी मेल कर दीजिए, Kolkata-DGFT@nic.in पे तुरंत मेल कर दीजिए इस सारे मैटर को कि कहाँ से क्या हमारा मसला है, जो कंप्लेन हो रहा है। ठीक है। इसमें एक चीज और है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये मेरी पर्सनल विनती रहेगी कि आप जो है इंश्योरेंस करा के ही करें। हाँ 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 हाँ। क्योंकि होगा क्या कि अगर बायर कल की डेट में भाग, आप मान लीजिए कि आपको उसने आधा पैसा अपफ्रंट दे दिया, आपको नहीं पता आगे वाला कौन है। आधा पैसा अपफ्रंट दे दिया, उसने बोला आधा पैसा जैसे ही मेरे पोर्ट पे पहुंचेगा और आपके अकाउंट में, आपने बोला कि अरे ये तो $30,000 आ गया है, बहुत बढ़िया, कर ही देगा। आपने भेज दिया, $2,000 बचा लिया, आपने सोचा कि इंश्योरेंस छोड़ो ये तो जेन्युइन लग रहा है, भेज देते हैं, आपने भेज दिया उसको, वो लेके पूरा सामान ही भाग गया, वो आपका लॉस हो गया। आप कहीं भी जाओगे, डीजीएफटी जाओगे, डीजीएफटी अपने स्तर पे वहां की जो एम्बेसी उनको लिखेगी, कोशिश करेगी पकड़ने का, उस बायर को ब्लैकलिस्ट भी कर देगी शायद, जेन्युइन केस है तो। हाँ हाँ। लेकिन आपका पैसा तो गया, आपको तो 1-2 साल घूमना पड़ेगा, बहुत लकी होगे तो शायद मिल जाए। तो अब इसमें क्या है कि ईसीजीसी जो है, जैसे एलआईसी है आम लोगों के लिए, वैसे बिजनेस के लिए ईसीजीसी सरकारी है। तो लाइसेंस जरूर, आप इंश्योरेंस जरूर करा के भेजें, तो एक सेफ्टी नेट रहता है आपके पास। इंश्योरेंस करा ही लेना है। क्रेडिट पे तो इंश्योरेंस लगता नहीं है, वो उस पे क्रेडिट पे तो इंश्योरेंस नहीं, फ्रेट पे नहीं सर, अपने प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस करवा लीजिए। फ्रेट पे इंश्योरेंस तो फ्रेट इंश्योरेंस हाँ, तो इंश्योरेंस कराएंगे तो काफी कुछ सुरक्षित रहेगा आपका। ये जो बता रही है कि भागेगा, भागता है, बहुत सारा केस आता है। हम तो देख रहे हैं कि महीना में 8-10 केस हो जाता है कलकत्ता में। ये केस नार्कोटिजन का तो होता है, तो बहुत ज्यादा तो हम लोग भी जो प्रोसेस है वही करेंगे। पैसा तो दिलवा पाएंगे ये गारंटी तो नहीं, मगर यदि इंश्योर्ड रहेगा तो वो गारंटी होगी। और एलसी के थ्रू भी यदि मान जाता है तो वो तो गारंटेड है कि चलिए कम से कम रिस्पॉन्सिबल है मैं, ये है। सर ये एलसी जो है कितने हद तक प्रैक्टिकली लोग काम कर पाते हैं, क्योंकि इतना सेफ्टी नेट बन गया तो उसके बाद प्रैक्टिकली लोग काम कर पाते हैं एलसी के थ्रू? एलसी के थ्रू करते हैं, मतलब करते होंगे, लेकिन अगर देखा जाए कि करते हैं। अब नेपाल में तो एलसी का नीड है, नेपाल में तो एलसी का तो आईएनएफ चलता है, तो सेम वहाँ तो कुछ है नहीं। मैं जैसे ही बांग्लादेश का भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ तो आपका एलसी के थ्रू ही करना है और करेंगे ही, अदरवाइज तो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। तो जितना जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट, तभी वो तो सरकार का भी फायदा है। ये है। फिर क्वेश्चंस वगैरह हो अगर सर से रिलेटेड, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। और एक लास्ट हमारे स्पीकर हैं
जी उसके बाद हम I think everyone is covered. एक मैं आपसे चाहूंगा फाइनेंशियली आप थोड़ा सा, जैसे नेक्स्ट एलसी टाइम की का बात हो रही डिसीजन थी। प्रोग्राम काफी कुछ सोच करके हम बहुत सारी बातें इसमें हमको निकल के आ गया, समझ भी गया, पहला अनुभव मेरा था। प्रोग्राम बढ़िया से हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, बिल्कुल। अब हम लेते हैं सर का भी नहीं नंबर। नहीं, बेसिक आज के डेट में आप सब लोगों को पता चल गया डीजीएफटी है क्या, डीजीएफटी करती है क्या है। जी। दैट इज द बेसिक आइसबर्ग दैट वी डिड टुडे, वेरी फैंटास्टिक। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे भी, मैं डीजीएफटी में हूँ, ये तो भी लोग समझ नहीं पाते। ये तो आश्चर्य की बात है। ये लगता है तो इसका अवेयरनेस बहुत जरूरी है, खासकर यहाँ तो और ज्यादा। ऑफिस तो था तब तो कुछ ठीक भी, ऑफिस जब खत्म हो गया, सरकार को तो खत्म करना ही नहीं चाहिए था ये। इतना मुश्किल से तो ऑफिस किसी जगह पे आता है, ऑफिस है यहाँ से हट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस तो बिल्कुल हटना नहीं और चाहिए। बिहार में सर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज ग्रोइंग वेरी इधर चलेगा, आप लोग इधर करते हैं काम। फास्ट। और ये देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया है कि वो जो एक टेबल हाँ, एक के लिए, सिंगल विंडो सर वहाँ पे वो एक हम लोग यहाँ कम से कम खोल के तो बैठे, ताकि लगे भाई कि लोगों का भी एक हफ्ते से शुरू करा दीजिए। कौन सा ये सारे जो मिनट्स बनाएंगे उसमें ये सब चर्चा मिनट करके बता देंगे इसमें। अब देखिए उसको हम काफी बढ़िया से वहाँ अपने हम एडिशनल डीजी से बात करके और एक्टिव करने के लिए यहाँ एक डेस्क यहाँ पे डीजीएफटी का आ जाए तो हाँ हाँ, आना चाहिए तो से काफी कुछ बढ़िया रहेगा। कम से कम तो लोग यहाँ पर भी बिकॉज स्टार्टअप मोस्टली यहीं पे आते हैं तो स्टार्टअप है, एमएसएमईज हैं, एमएसएमई है, पीएमई योजना के भी कुछ अच्छे जो लाभ होता है उनको करना चाह रहे हैं। मखाना है, अच्छा खाना से Handicraft, लीची का जर्दालू, आम, लॉट ऑफ देम, बहुत कुछ है। सारे लोग हटते चले जा रहे हैं, मैंने बोले कि सिर्फ वाले एकदम नहीं है, बजरंगपुर बाहर से चले जा रहे और हैं। इनफैक्ट हैंडीक्राफ्ट का जो है वो यहाँ से यूपी ले जाते हैं, यूपी से वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा तो मधुबनी का पेंटिंग वेंटिंग को तो एक्सपोर्ट के लायक काफी बढ़िया चीज है, राइट सर। बहुत पोटेंशियल बहुत बढ़िया, इसमें कम नहीं है, सारा जगह पे तो और एक ही हमारे रहे। यहाँ हैंडीक्राफ्ट वाले बहुत सारे स्टार्टअप बैम्बू वगैरह से बनाने में काफी ये ये सब भी हैंडी, ये अब कुछ बड़ा एरिया है, जैसे वहां तो बगल में जैसे भदोही उदोही में कालीन है, यहाँ कुछ सूजनी उजनी का भी कारोबार है बहुत सारा सर बहुत है सर, कर्नाटक एक जगह है सर हाँ वेस्ट चंपारण में, हाँ हाँ। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी बनता है और वुलन ये कपड़े भी बनते हैं सर वहाँ। गया साइड में हमने स्टोन का भी देखा है, स्टोन पीतल के बर्तन का भी काम है। पीतल का बर्तन भी, हमारा साइड का जो है पीतल का पेड़ का क्या सब वो भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि विच कैन बी एक्सपोर्ट वर्दी इफ वी आर एबल टू फैसिलिटेट देम। एक तो अवेयरनेस, दूसरा थारू ट्राइब जो है दे आर वर्किंग ओनली ऑन दिस सर। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो बिहार गवर्नमेंट है ना, वो इतना सपोर्टिव है और इतना अभी अच्छा माहौल है कि इसमें आप लोगों को यहाँ पे काफी एक्टिवली जो है, हम बताए ना कि पिछले बार जो पीएमजी यहाँ आए, सीपीएमजी आए, हाँ उसके बाद हमको लगता है कि हम लोगों के माध्यम से करीब 50 लोग रजिस्टर्ड हो registered गए, बहुत बड़ी बात है, 50 लोग रजिस्ट्रेशन ले लिया एमएसएमई एक मीटिंग में। तो एमएसएमई के जेड सर्टिफिकेशन में बिहार इज रैंक 1, तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल तो है। हाउ वी फैसिलिटेट इज, देखिए यहाँ अगर आप आपको बता रहे हैं जैसे बीहब है, या अभी देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का अभी बड़ा जो 70,000 की उसके लागू, उसकी ट्रेनिंग में सीआईएमपी काफी कराता है, तो हम लोग उसमें जो है अगर इनका यहाँ पे ऑपरेशन है उसमें एक सेशन इन लोगों को दिया जा सकता है हर ट्रेनिंग में। तो हमारा 6 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें एक सेशन जो है आप आके बताइए, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि, तो अगर बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैप्चर करते हैं। तो पूरी तरह से तो जब डीजीएफटी है तभी एक्सपोर्ट होगा। माई बाप ही आप ये तो निश्चित रूप से है, इसका तो रोल है, एक्सपोर्ट में तो रोल इसी का है। और यही है कि अवेयरनेस नहीं चलाया गया, और ये ऑफिस को भी कलकत्ता शिफ्ट होने से भी प्रॉब्लम हुई है, लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं, वो पुराना का पुराना वही सारा चीज यहाँ सेट है उस ढंग से नहीं जो चल रहा है। चुना भी तो लोगों ने वो दरभंगा और भागलपुर को तरफ ही जो पटना के लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं, वो उधर से ही अपना जो काम भागलपुर का प्रोडक्ट है या जो दरभंगा का प्रोडक्ट है
हम लोग भी मैंने यहाँ इधर के लोग भी वो सारा काम कर सकते हैं, या वही के लोग जो है जागरूक होकर के यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो फायदा तो होगा बिहार का ही ना, कहीं फायदा नहीं, काम तो होनी चाहिए। करते हैं इस बार हम, आपका भी हम काफी कुछ बढ़िया समझा कि चलिए भाई, उन्होंने बोला है सारा चीज के लिए, आप लोगों से भी संपर्क तो हमारा था नहीं, अब बढ़ेगा और ये काम निश्चित रूप से आगे तक चलेगा। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू चलेगा। सो मच। और ये जी एक 5 मिनट का मैं आपसे चाहूंगा कि एक्सपोर्ट पे बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल्स की, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आती है। थोड़ा उस पर अगर आप बता पाओ, अगर जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, वर्किंग कैपिटल बहुत लोगों के पास होती नहीं है, अगर पेमेंट 2 महीने 3 महीने बाद आनी होती है तो अटक जाती है, तो उस पर कैसे थोड़ा सा जो स्टार्टअप या एक्सपोर्टर हैं कर सकते हैं उस पर अगर थोड़ा सा अगर आप बता दें। वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट बैंक को लोन देती है। वर्क ऑर्डर अगर आपके पास होता है तो किसी भी नेशनलाइज या प्राइवेट सेक्टर बैंक को टारगेट है कि स्टार्टअप को लोन देना है। तो जहां भी आपका बैंक अकाउंट होगा, वंस यू गेट द आईसी कोड, वहां पे बैंक अकाउंट को तो उसमें अपलोड करना ही है, दैट्स मैंडेटरी। तो आप आईसी कोड लेके और किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग ए वर्क ऑर्डर। एंड एवरी बैंक हैज अ टारगेट फॉर स्टार्टअप्स टू get the funds. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के थ्रू और सुमन सर, राणा सर के लोग सब पैनल है उसमें, कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम रेज होता है, यू कैन डायरेक्टली कम टू अस एंड लेट अस नो कि कौन सा बैंक है जो आपको नहीं दे रही है लोन। सर लोन दे तो देती है पर बहुत टाइम लगाते हैं। जब हमारा जो डेडलाइन होता है माल पहुंचाने का, जैसे 2 महीने हुए 3 महीने हुए, बैंक में लोन लेने जाओ तो इतना डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मिनिमम 1 मंथ तो लगा ही देता है, जो मिनिमम बात करें, और तब तक हमारा डेडलाइन खत्म हो जाता है। नहीं, that's why I'm saying you can approach us, you can write to us, इस बैंक में आपका अकाउंट है एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। एसएलवीसी को भी मीटिंग में बुलाइए, रहेंगे तो We'll raise the ये issue भी ऐसा आ रहा है and we'll write the complaint to the bank also. तो फिर तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो लोन देके क्या कर। हाँ, like उनको भी रखिए। बोला निर्यात बंधु जो अभी तक सोच रहे हैं, हाँ, निर्यात बंधु जो हम कर रहे हैं उसमें उनको भी, ईसीजीसी को भी, सारी पार्टी बिल्कुल बुलाइए, सारी ताकि पार्टी एक ही एक प्लेटफॉर्म पे ही सारा चीज का समाधान हो। ईपीओ को भी। हाँ हाँ, वो अच्छा रहेगा। कस्टम्स को भी एकदम एक मना करते हैं। कस्टम्स को। इसलिए सबसे प्रॉब्लमेटिक होती है ना, हाँ, प्रैक्टिकल चीजें हम फेस करते हैं वहां पर, जैसे कि आपने डीजीएफटी ऑफिस ने लाइसेंस लेकिन पीसीजी, अब हम गए कस्टम से, हमारा माल आके पड़ा हुआ है, बोले कि भी ट्रांसमिट नहीं हुआ, हम जाके आइस गेट में खोजो, आइस गेट में ढूंढने जाते हैं, आइस गेट को पता नहीं चलता, आप डीजीएफटी ऑफिस हाथ झाड़ लेता है, मैंने तो इशू कर दिया, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, कस्टम्स में पहुंचा नहीं, हमें डैमेज लगना शुरू हो जाता है वहां पर। कस्टम्स वाले बोले मेरे पास तो आई नहीं, मैं क्या करूं। उनको भी रखिए कि भाई सो एटलीस्ट गवर्नमेंट एजेंसी शुड बी अलाइंड टू, कस्टम्स कमिश्नर को भी बुला एकदम बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो प्रॉब्लम है जिन्होंने प्रैक्टिकली बताया वो सही बताया, ये होता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इश्यूज भी हैं। मतलब 2 दिन का भी अगर डैमेज लग गया तो आप लाइसेंस इशू करें या ना करें, फिर ना करें, बात तो वही होगी। बराबर कहानी हो जाती है। ये प्रैक्टिकल मैं देखता हूँ, ये बहुत ज्यादा समस्या है। डीजीएफटी तो लाइसेंस इशू कर दिया, आईसी गेट में हो नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन। सर डीजीएफटी मैं दिल्ली में फेस करता हूँ कि डीजीएफटी दिल्ली का अब जो रूटीन है कि वो फर्स्ट हाफ में किसी से मिलते नहीं, हाँ हाँ, अब चाहेंगे तो, अब चाहे भी तो उनसे मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। आइस गेट ऑपरेट करता है उद्योग भवन से, उद्योग मिनिस्ट्री में अपनी एंट्री नहीं होती, सही ठीक है। बाकी बस है कस्टम्स वाले, कमिश्नर के पास तो टाइम होता नहीं है, जो डीलिंग हैंड वाले होते हैं, भाई मेरे पास तो इतना सारा पाइप रखा हुआ है, क्या करूँ। तो अभी अभी तो जो है ना, अब तो मीटिंग एकदम बंद हो गया है, मगर वो वीसी में अभी आपको मिले 10:30 से 11:30 एकदम वीसी ज्वाइन वीसी में कहाँ सॉर्ट आउट होता है, कहने की हर बात आदमी थ्योरेटिकली बोल देता है, जो वीसी में नहीं, कम से ऑनलाइन नहीं था, वीसी में सारे कोलकाता ऑफिस का मेरा बस एक्सपीरियंस नहीं है, सारे ऑफिसर एकदम मैंडेटरी कर रही है। सबसे पहले आप वीसी को ही बाद ही कोई काम हो, वीसी में एकदम पहले ही से यदि आप क्वेश्चन आया अपना दे देंगे ना वीसी का अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका स्पॉट सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब दिल्ली वाला तो आपने बोला ठीक होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज आपने बोला, ये होता ही है।
तो ठीक, उनको अब भी कनेक्ट कस्टम है को तो भी हम वहाँ रखिए, पहुंच जाते हैं ये स्टेट में सब कहाँ ताकि उसका उनको हुआ वो है भी डी पता में है जितना भी सबके लिए डीजीएफटी अवेलेबल नहीं है वो, जो मैटर हम इनहेंस कर सकते और हैं। इतना हेफ्टी पेनल्टी ठोक रहा है समझ में आ गया हमको कि क्या क्या चीज पर हमारा ये है जो कड़ी है जो बढ़ने नहीं। लगता है हम लोग मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पे नहीं, पे होती है पर कस्टम डीजीएफटी ऑफिस इज वेरी सपोर्टिव, चाहे जहाँ का भी है, इवन आप हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, डीजीएफटी ऑफिस इज वेरी सपोर्टिव। मतलब मैंने 3 घंटे में ईपीसीजी लाइसेंस इशू कराया हुआ है, मैंने बताया कि मेरा माल निकल गया है वहां से, मशीनरी आ गई है, उन्होंने 3 घंटे में मेरा सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इशू करके दिया हुआ है। मतलब इतना तो सपोर्ट किया हुआ है है। बट कस्टम्स में जाइए फिर वहाँ कहानी खड़ी हो जाती वहां तो फिर हाँ ठीक है, इसलिए उनको रखना है क्यों है, इसलिए कस्टम्स वाले अगर मीटिंग में फॉर्म के चलिए ठीक है सर, मैं इसका नेक्स्ट जो है और एक जीएसटी वाले स्टेक होल्डर को भी रखिएगा। एक कस्टम कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, डीजीएफटी, ईसीजीसी, एसएलवीसी एसएलवीसी, हाँ बैंकिंग जीपीओ और अपीडा और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। आइसनेट से कोई मिल जाए तो भी ले लीजिए। भाई सिगरेट तो नहीं, भाई सिगरेट से अच्छा ठीक है, वो भी रह सकते हैं। See, because the linking pin has to be there because there are technology level integration issues. Right. और एक इसमें जो है ये करके एक सिंगल विंडो क्रिएट कर दे कि जहाँ पे एक जगह जाए पता चला यहाँ गए वहां गए यहाँ फंस रहे हैं यहाँ दौड़ रहे हैं। There has to be a single point so that people have to raise one place and then बाकी बैकएंड की सारी टीम रिजॉल्व करने पे लग जाए। यहाँ नहीं वहाँ वो हाँ इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म से पता चलो एवरीवन इज पासिंग द बॉल टू मेरा तरफ तो ठीक है उधर जाके चेक कर लो, बेचारा पागल हो रहा होता है कहाँ कहाँ जाएगा, वो अपना धंधा देखेगा कि यहाँ वहाँ मिलने के लिए धक्के खाते सिर्फ एक और बात है कि जैसे हम एप्लीकेशन डालते हैं कहीं भी, कस्टम्स ऑफिस की मैं बात करूँ या डीजीपी ऑफिस में, वो दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हो जाता है, डिस्क्रिशनरी हो जाता है उनका। जैसे कुछ एप्लीकेशन होता है कि वहाँ आपके रीजनल ऑफिस में ओपन हो जाता है, कुछ एचओ मार्क हो जाता है, हाँ राइट, तो एचओ वाले का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है वहाँ, जो भी एचओ मार्क हुआ वहाँ डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब वो अपने इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं आपका इस एचएसएन कोड में नहीं फॉल कर रहा है, आपका यहाँ यहाँ, तो एक्चुअली एचएसएन कोड तो एक इंडिकेटिव कोड है, सारे प्रोडक्ट आपके एग्जैक्टली उसी फ्रेम में नहीं सेट करेंगे। हाँ वो कहते हैं कि नहीं, हम बोलते हैं कि उसी में आ रहा है, हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आप ये कर दो कि एटलीस्ट रिप्लाई आप कर दी कि इसमें नहीं आ रहा। ये और बवाल अब ये हो गया है कि अब जीएसटी का जो इनवॉइसिंग प्रोसेस है उसमें भी अब वो नंबर कोड डालना पड़ रहा है राइट, एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच डू नॉट हैव अ कोड आइडेंटिफाइड एज येट। भाई पूरी विद्वता जो है भाई हर डोमेन की एक्सपर्टीज वहां पे जो लोग बैठे हैं उसकी नहीं हो सकती। द पर्सन हुज मैन्युफैक्चरिंग इज मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उसका कोई कोड ही नहीं है, वो इनवॉइस ही नहीं जनरेट हो सकती। आजकल इतना वो जीएसटी का जो इनवॉइसिंग का प्रोसेस मैकेनिज्म है इट हैज बिकम सो, आप बैठ के बेचारा ढूंढ रहा होता है एचएसएन पर एक इनवॉइस रेज करना आज के डेट में कितना टाइम लग रहा है यू डोंट नो। एक इनवॉइस को ढंग से रेज करना, अच्छी कौन सा प्रोडक्ट है एचएसएन ढूंढते रहो कितना घंटा में एचएसएन ढूंढे। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सॉरी आपको इन्वेंशन के केस में, इन्वेंशन के केस में आप डालेंगे कहाँ उसको, आपको जबरदस्ती अकोमोडेट करना पड़ता है ना किसी एचएसएन कोड में जाके। I think we need to raise it to the GST committee also, policy level committee पे भी कि इतना जो complicated process को हम complicate करते हैं everything gets stuck। तो एटलीस्ट दिस शुड अलाइन विद सब आईपीआर डिपार्टमेंट, जो भी आईपी है वहां से कम से कम अलाइन करें कि जो जो वहां से लाइसेंस दे रहे हैं वो लोग वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो एटलीस्ट एक solution है de-siloization, everyone is working in a silos। राइट 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 पे जो है इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, अब जैसे आईपीआर ने किसी एक सेगमेंट में दे दिया आईपीआर ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एचएसएन मतलब वो जनरेट हो जाता है कि इसकी इनवॉइसिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला उसको फिर रेज करने में वो एचएसएन वो नंबर ही नहीं मिलेगा, कैसे इनवॉइस रेज, अब इनवॉइस नहीं रेज करेगा उसका पैसा नहीं आएगा। मतलब लिटरली वी आर मेकिंग पॉलिसीज टू मेक द ट्रेड गेटिंग स्टक। और ये प्रॉब्लम सर हैंडीक्राफ्ट आइटम में बहुत ज्यादा हो। आई नो आई एम टॉकिंग इन जनरल, मैं तो मतलब नेशनल फ्रेमवर्क में देख रहा हूँ पॉलिसी लेवल सिमिलर हो जाता है तो चलता है बट बहुत ज्यादा। ठीक है सर, तो let us wind up। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर सुजीत कुमार निराला जी for being here sir, for giving us knowledge about the policies of DGFT. Thank you so much. We will continue, we will be in continuous touch
definitely will organize the next program as per the advice by you. And I would like to thank Dr. Rana Singh. Sir, thank you so much for your presence. I would like to thank Mr. Nilesh Kishorji and our co-chair, Dr. Mr. Kumar Kumar. Sir, I would like to request you to kindly facilitate Mr. Sujit Kumar Nirala ji with the memento of PhD-CCI. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर राणा सिंह को भी आप प्लीज मोमेंटो से सम्मानित करें. आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मिस्टर नीलेश किशोर जी को भी एक मोमेंटो देके उनको सम्मानित करें. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a very good session, and I hereby make this session concluded. Thank you so much. Thank you also for organizing the session at here. Thank you very much, PS. Thank you so much. Sir, we are part of family, so I will be here.